Okay, so let me wish you all a very happy International Mother Language Day. So since we are already quite late, so let me jump on the topic that I supposed to discuss right here today. So the topic is admission guidance for International Institute for Population Science, Mumbai. So the point is, since the moment we start talking about the admission guidance for International Institute for Population Sciences, one may ask this question, like, what is the need of admission, additional, what to say, the discussion of it, because IAPS website is such a resourceful website which gives all the information. But there is a reason to discuss little more. The reason is, as you all know, that IAPS is the institution which offers courses from post graduation. It means if you are aspiring to go to IAPS, you must have a graduation degree. It means you have your parent subject. So the moment you are just thinking to change your parent subject, maybe you have geography or economics or statistics, so you are planning to go for population studies. So you are just trying to change your not only university but your subject as well, which is really very difficult to decide. So let me tell you one very small story what happened with me when I was in the final year of my graduation in the Aligarh Muslim University. So I filled the form for IAPS, but I had so many questions in my mind, like what will happen if I do not get success after going there. I'm changing my parent subject to a new subject. So many questions, and I really wanted to have someone uh, who can really clear all my doubts and answer all my questions. But unfortunately, those days we did not get this opportunity what you are getting right now. So and yesterday when I was making PPT, I was thinking like, okay, what are the additional things I can discuss, which you may not find from the IPS website. So I just put myself in your situation, and I got some very fundamental question that every student, whoever is aspiring to come to IAPS, they must know. So I got around 10 questions that first of all I'll answer them. After that, I'll discuss about your syllabus for the entrance exam. After that, how to prepare for the entrance exam. So likewise, the last part I'll discuss about the question answer session. So could you please go ahead, Yasir? Yes, Yes, thank you. So yeah, since this program is going to be the bilingual thing, so I mean, if you do not understand anywhere, please let me know. I'll repeat. So the first point is, who should come to IAPS? That every student they should know before entering into IAPS. किसको IAPS आना चाहिए? So like किसको IAPS आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए, ये one should know that. So I have been here in IAPS for last 6 years. So whatever limited experience I have, based on that I made these 5 major points. So like, sometime what happened that just after finishing our 12th standard, we choose a subject for graduation. Okay, but many time it happens that maybe the subject you have chosen for your graduation you are not quite interested in, although you have chosen, but you're not quite interested in, and maybe you are not good at that subject. So if this is the case with you, then IAPS can be the best option for you. For my case, if I take as example, like, I have chosen geography as my major, I mean honor subject, but I mean I did not have much interest in that. So final year only I have decided that I must change my subject. So I have in that case I have chosen IAPS. So if you belong to this category, then I would suggest you to come to IAPS. दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसा कोई
स्टूडेंट है जिनको बहुत ही अर्जेंट जॉब का जरूरत है, जस्ट लाइक मास्टर डिग्री के बाद ही आपको जॉब चाहिए, अगर ऐसा सिचुएशन है तब भी आईएपीएस एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। आह, और कभी-कभी क्या होता है कि हमारा जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो इतना साउंड नहीं होते हैं, तो sometimes you may feel like okay, your parents they may not support just after graduation, so you cannot pursue your masters in from the central university or anywhere which is not offering kind of fellowship. In that case, IAPS really can be the best option for you. The third option is highly energetic to do a job in the development sector rather than teaching sector. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जॉब चाहिए, वो जॉब जरूरी नहीं कि टीचिंग फील्ड में ही हो, आपका ज्यादा इंटरेस्ट डेवलपमेंट सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर ऐसा आपको लगता है तो भी आपके लिए आईपीएस एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकते हैं। चौथा पॉइंट, स्केप्टिकल अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटी इन द एग्जिस्टिंग फील्ड। कभी-कभी क्या होता है, हम कई बार सुनते हैं कि हम जियोग्राफी में कर रहा हूँ मास्टर्स, हमें जॉब मिलेगा या नहीं, पीएचडी भी करूँगा तो क्या होगा? हाँ, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, अगर आपके अंदर ऐसा डाउट लग रहा है जॉब को लेकर, जो कि आपको बहुत ज़रूरत है, फिर भी आपको डाउट है, उस सिचुएशन में आईएपीएस आना आपके लिए बेहतरीन एक ऑप्शन बन सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, aimless student. We all know that COVID came and which really shattered everything, including our academic studies. तो जाहिर सी बात, जब एकेडमिक स्टडीज अफेक्ट होते हैं तो हमारा एम भी इधर उधर हो जाते हैं। तो अगर ऐसा है कि आप अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए आपका जिंदगी में करना क्या है, तो यू कैन कम टू आईपीएस विद अ न्यू सब्जेक्ट, with a new environment, with a new people, and you can commit with yourself to grow faster. So in that case, I would recommend you please come to IAPS and we are here to welcome you. दूसरा पॉइंट ये है कि आईएपीएस में तो डिस्कस किया कि इसको आना चाहिए, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इसको नहीं आना चाहिए। तो द आंसर इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ हु शुड कम टू आईएपीएस। अगर आपको लगता है जिस फील्ड में आप हैं उसमें यू आर डूइंग एक्सेल, इन दैट केस आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू कम टू आईएपीएस because already you are doing great, so there is no point of changing your from one subject to another. आपको लगता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है, आपको फेलोशिप नहीं चाहिए और आपको अर्जेंट जॉब भी नहीं चाहिए, आपका फील्ड में आप हायर स्टडीज में जाएंगे या तो जो भी आपका एम है उस हिसाब से जाएंगे, अगर आपका अंदर वो जुनून है तो फिर आने का जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि टीचिंग फील्ड में ही आपको जॉब करना है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ फैमिली भी होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आईआईपीएस मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर एक ऑप्शन नहीं भी हो सकते। इसलिए हालांकि कुछ सीनियर्स हैं जिनको टीचिंग फील्ड में भी मिला है, मगर आईपीएस में पढ़ने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज है वो कंपैरेटिवली कम है टीचिंग फील्ड में। ओके, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस फील्ड में है उस फील्ड में आप कामयाब हो जाएंगे, आपका कोई डाउट नहीं है, तो फिर इस फील्ड में नया फील्ड में आने का कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आपका एम फिक्स्ड है, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो आपको पता है, तो फिर इस नया फील्ड में आने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये दो सवाल मुझे लग रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी स्टूडेंट के लिए जो ये सपना देखता है कि आईपीएस आना है। तीसरा सवाल मैंने लिखा कि व्हाट इज आईपीएस पॉपुलर फॉर। आईपीएस इज अ quantitative hub, quantitative analysis hub. Here, people, I mean, almost every student they know how to analyze quantitative data, especially the demographic and health survey data. So, IAPS inculcate all these skills within yourself, within its students in such a way so that they can get employment anywhere, especially in the development sector. So that is the biggest strength of IAPS. तो IAPS इसीलिए IAPS जो है जो स्टूडेंट्स IAPS का होते हैं उनको 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाते, क्योंकि उनको उनके अंदर वो स्किल्स
इनकलकेट किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन जो है कि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि आईपीएस 3-4 जो भी कोर्सेस ऑफर किया जाता है उनमें से कौन कौन सा कोर्स सबसे बेहतर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि एमपीएस जो है वो बेहतर सबसे बेहतरीन कोर्स है, मगर मैं एप्पल को पोमग्रेनेट के साथ कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, बल्कि मैं इस तरह से आंसर देना चाहूंगा कि हर जो भी कोर्स ऑफर किया जाता है आईपीएस के द्वारा, हर कोर्स का एक अलग अलग मोटिव है। तो जब आपके पास ऑलरेडी मास्टर्स है तो आप एमपीएस के लिए कोर्स करिए। और जो रीजन दिया जाता है एमपीएस कोर्स सबसे बेहतर है इसलिए क्योंकि साइड बाय साइड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो ऑप्शंस है, मास्टर डिग्री रहते हैं आपका पेरेंट सब्जेक्ट में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो भी वैकेंसी आते हैं, पोजीशन आते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए बोला जाता है। मगर एट द सेम टाइम मैं जैसे कि एमएमएससी किया, एमपीएस नहीं किया, मगर आई वाज वेरी मच कमिटेड विथ माई सेल्फ। लाइक मेरे सामने एक ही ऑप्शन है और मैं एक ही ऑप्शन एक ही ऑप्शन को लेकर मैं आगे चलूंगा। और मल्टी फोकस्ड इज नॉट गुड ऑलवेज। तो अगर आप एमएमएससी भी कर रहे हैं और आप फोकस्ड है तो भी आप आगे जा सकते हैं। वेल, एमबीडी जो कोर्स है, तीसरा कोर्स, वो कोर्स बेहतरीन कोर्स में से एक है। एमबीडी का अब तक मैंने एक भी स्टूडेंट नहीं देखा जिनको कोई जॉब नहीं मिला। तो इस हिसाब से मैं एमबीडी कोर्स में आएंगे तो आपको दो अपॉर्चुनिटी मिलता है। एक तो आप एमबीडी मतलब मास्टर्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी, एक तरफे आप बायोस्टैटिस्टिक्स का जो फायदा है वो भी लूट सकते हैं, दूसरा तरफ जो पॉपुलेशन स्टडीज का जो फायदा है वो भी लूट सकते हैं। तो इसलिए आईपीएस का एक भी कोर्स ऐसा नहीं जो कि आपको ऐसे ही मतलब ऑफर किया जा रहा है। हर कोई कोर्स का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। Well, the next PPT slide, yes, it. Okay. The fifth question key, what are the facilities available at IIPS? See, when we talk about facilities, what happen is, uh, wherever you go, at this stage, everywhere almost you will get the similar kind of facilities, library, maybe AC classroom, this, that, food and everything. But you may get something different from IIPS, which you may not get from other universities or research institutes. The first and foremost is research environment. Research environment, what I feel, I have been there in many central universities and research institutions. To be honest, I would place IIPS on the top when it comes to research environment. Second, highly competitive environment. Why I'm saying highly competitive environment? You may see like in other universities, after finishing PhD, one may have 5 publication or maybe max to max 10, 12, 15 publication. But at IIPS, at the end of the PhD, on an average 25 to 30 publication they publish, and that is that too in international very reputed journals. So you can understand how much competitive environment IIPS has. And the third one is quality faculty. Around 50% of the IPS faculty, they have their minimum 1 degree from the abroad. Okay, so they know the world class, the level that their student should have to compete with the to compete in the international level. So these are the qualities you may not find in other universities or research institution. Okay, the sixth point is, what is the job opportunity after doing a minimum of 1 course from IIPS? तो इसमें वही सवाल घुमा के मैंने 7 नंबर पे लिखा कि what if one does not get PhD immediately after masters? अगर मास्टर्स के बाद आपको पीएचडी में बाय चांस नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? तो फिर आपके पास एक ही डिग्री रहेगा आईपीएस का। तो वो जो एक बेहतरी ये शानदार सवाल में से एक है। तो देखिए, आप आईपीएस में एमफिल भी ऑफर नहीं किया जा रहा है और आईपीएस में फ्रीक्वेंटली प्रोजेक्ट आते रहते हैं और बाहर में भी जो डेवलपमेंट सेक्टर का बात कर रहा था मैं, वहाँ पे भी पोजीशन आते रहते हैं। तो अगर आप एक भी डिग्री कर लिया आईपीएस से तो आप इतना काबिल हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं आप प्लेस हो जाते हैं।
एक साल कर लिया कहीं आईपीएस में या तो आईपीएस के बाहर, दूसरे साल फिर पीएचडी के लिए कोशिश कर लिया। बाय द टाइम अगर आपका जेआरएफ नहीं हुआ तो फिर आप जेआरएफ के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जब तक आपका पीएचडी में नहीं हो रहा है तब तक आप जॉब कर रहे हैं साइड बाय साइड। ये जो ऑप्शन है, मुझे लगता है कि दूसरा यूनिवर्सिटी से बाद आपको बहुत ही कम मिल सकता है। तो ये एक बात है, अगर आपको बाय चांस इमीडिएटली पीएचडी नहीं भी मिला तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ आईपीएस स्टूडेंट्स? As I already told you, I have been here in this institution last 6 to 7 years. मैंने कई सारा बैच देखा हूँ, अपना बैच में अपना क्लासमेट्स को देखा हूँ, उसके बाद 5-6 बैच देखा हूँ। अब तक मैं यही कहूँगा कि मोर देन 95% स्टूडेंट दे गॉट प्लेस्ड। जो पीएचडी कर रहा है वो कर रहा है, जिनको पीएचडी नहीं मिला वो जॉब में है। कोई ऐसा नहीं, एक भी बंदा नहीं देखा जो कोशिश किया जॉब के लिए और जॉब नहीं मिला, वो भी विथ हैंडसम सैलरी। इट्स नॉट लाइक 15,000 का सैलरी है और 20,000 का सैलरी नहीं, एक अच्छा खासा सैलरी देते हैं। आईपीएस में अगर आपको जॉब मिल जाते, आपको मिनिमम जो सैलरी आईपीएस का होते हैं वो 37,000 का सैलरी होते हैं, और जो बाहर मिनिमम आपको 30,000 मिल ही जाते हैं। ओके, 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिंक विथ 7, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू गेट पीएचडी एट आईपीएस? कुछ स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि आईपीएस में ठीक है, अगर मिल भी जाते मास्टर्स में तो फिर पीएचडी में मिलना बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो मैं ये बता दूं कि आईपीएस जो स्टूडेंट पीएचडी में लेते हैं वो आईपीएस का अपना स्टूडेंट होते हैं, बाहर का कोई स्टूडेंट को पीएचडी नहीं दिया जाता है जिनके पास वो डिग्री नहीं है जो आईपीएस ऑफर करते हैं। तो जो स्टूडेंट आप में से पढ़ेंगे उनमें से ही मिलेगा, आसमान से कोई नहीं आने वाला, तो कोई डरने का जरूरत नहीं है। यस, कभी कभी अनफॉर्चुनेटली अगर इमीडिएटली नहीं मिलता है तो नेक्स्ट ईयर मिल जाते। तो डरने का कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन में ये है कि हाउ इजी इज इट टू गो अब्रॉड फॉर पीएचडी आफ्टर आईपीएस मास्टर्स? वेल, मैंने डिस्कशन में बोला कि 50% जो फैकल्टी है आईपीएस का, उनका डिग्री जो है फॉरेन से लिया हुआ है, मिनिमम एक डिग्री। तो उनको वर्ल्ड लेवल का जो कंपटीशन है उनके बारे में पता है, कैसे वहाँ पे जाते हैं वो पता है, हर कोई प्रोसीड्यूर के बारे में पता है, कैसे रिकमेंडेशन लेटर लिखना है वो भी बहुत अच्छे से पता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कुछ हर साल लास्ट 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ 1-2 करके आईपीएस से जाता ही है बाहर। इस साल मुझे मिला और एक जूनियर को मिला। तो इस तरह से आईपीएस से जाते रहते हैं। तो आपको लाइव 1-2 स्टूडेंट मिल जाएगा जो फॉरेन में जिनको हो रहा है। तो आप जब किसी लाइव एक स्टूडेंट को देखेंगे कि वो किस तरह से पढ़े हैं, उनको पूछ सकते हैं फेस टू फेस कि भैया या जो भी है दीदी कैसे स्टडी करना चाहिए हमें, हम अगर जाना चाहता हूँ। ये चीज़ आप दूसरा यूनिवर्सिटी में से कितना मिलता है मुझे पता नहीं, मगर आईपीएस में बहुत ज़्यादा है। ऊपर से आपके पास हमेशा आपका जो इस टीचर्स है वो भी बहुत सपोर्टिव है। मैं एएमयू से पढ़ा हूँ और मुझे स्टूडेंट और फैकल्टी का जो रिलेशनशिप मुझे एएमयू में देखने को मिला, उससे मैं मतलब वहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस रहता था। हो सकता यूनिवर्सिटी है इसलिए, मगर आईपीएस में स्टूडेंट और फैकल्टीज़ का बीच में काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप है। तो और किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन का बात नहीं है। आप कभी भी कहीं भी आप मेल कर सकते हैं और उन लोगों का सजेशन आस्क कर सकते हैं। Well, I am done with all the questions which I thought to answer first before going to discuss about syllabus. तो मैं यही कहूँगा कि मुझे लगा जो क्वेश्चंस वही मैं इंक्लूड किया। तो एट द एंड ऑफ द ऑफ माय प्रेजेंटेशन मैं उम्मीद करूँगा कि मुझे कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे और आई वुड रियली लव टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ बिलीवर इन द आइडिया ऑफ वन साइड मन की बात। मैं हमेशा सवाल का जवाब देना पसंद करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये सब सवाल ऐसा है, बहुत एक्सपेक्टेड है, तो मैं खुद बनाया सवाल और खुद जवाब दिया। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मुझे कुछ सवाल मिलेंगे और मैं
I'd love to answer them. Well, now I'm going to discuss about the syllabus for the entrance exam. तो इसमें देखिए आप किसके लिए क्या कहते हैं कौन सा कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है ये मायने नहीं है। इस तरह का सेम तरह का सिलेबस है। जीके से कुछ आते हैं, बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, हेल्थ एंड सोशल साइंस। इसमें लेट मी पे माय ग्रेटिट्यूड टू अब्दुल रहीक। आई हैव जस्ट कॉपीड हिज पोस्ट एंड पेस्ट हियर। यस, तो दूसरा स्लाइड यासिर। तो मैंने ये जो भी लिखा आप देख रहे हैं यहाँ, ये सब मैं राहिक का पोस्ट से लिया हूँ और वो बहुत ही अच्छे से लिखे हैं। हर पॉइंट जीके में आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन सा यूट्यूब का चैनल देखना चाहिए, हाँ, सब कुछ अच्छे से लिखा है। मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा कुछ जीके का जो पार्ट है। आप बिपिन गोयल सर का वीडियो है, यहाँ पे आप एक फोटो ले लीजिए अगर आपके पास मोबाइल है तो, हाँ, तो ये वाला आप देख सकते हैं। वॉच ऑल द वीडियोज एंड मेक श्योर टू प्रिपेयर द नोट्स। और दूसरा लास्ट ईयर का जो क्वेश्चंस है वो जैसे कि रिलेटेड टू G6 कंट्रीज, G8 कंट्रीज का कैपिटल, रिवर, ये सब। और एक बुक को रेफर किया, मनोहर पांडे का जो जीके का बुक है 25 रुपए का आते हैं, वो वाला बुक थोड़ा आप रेफर कर सकते हैं जीके पार्ट के लिए। जीके ये वाला पार्ट और भी कुछ चीज इंक्लूड करते हैं या सिर्फ नेक्स्ट करंट अफेयर्स। इसमें क्या करना है आपको, करंट अफेयर्स हर रोज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, या तो फिर लास्ट 6 महीने में या 8 महीने में क्या हुआ उसका ऊपर थोड़ा एक कुछ खरीद कर पढ़ लीजिएगा। स्पेशली जो पॉपुलेशन रिलेटेड है उसका ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। ओके, नेक्स्ट बेसिक इंग्लिश। देखिए ये वाला पार्ट जो है, इसमें मैं जब दिया था एंट्रेंस एग्जाम, मेरा वक्त सिनोनिम, एंटोनिम्स यही ज्यादातर आए थे। ओके, तो अभी जो है आप ऐसा तो प्रिपरेशन के चलते आप रात और दिन में आप बहुत इम्प्रूव नहीं कर सकते, ये एक लैंग्वेज है। तो आप कुछ एक्सपेक्टेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड चीज सिनोनिम एंटोनिम पढ़ सकते हैं और कुछ ट्रू फॉल्स ऐसा। बेसिक्स मैथ जो है उसी तरह RS अग्रवाल का बहुत पॉपुलर बुक है, उसमें आप जो ये एक्सरसाइज रहते हैं वो 50 हर चैप्टर का, बहुत एडवांस लेवल नहीं आते हैं, तो 50-50 करके करेंगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका फोटो ले लीजिए क्योंकि मैं पूरा रीडिंग नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ताकि आप नसीम बाद में नसीम भाई, यस एक मिनट इंटरप्ट के लिए सॉरी। अगर रैली को इंटरेस्टेड हैं, मतलब एंट्रेंस देने के लिए, मैं हूँ मुहाइदा है, अगर कोई इंटरेस्टेड है हम लोगों को कांटेक्ट करें तो हम लोग उनको प्रोवाइड कर देंगे सर। यस 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 ओके, कंटिन्यू। या थैंक यू सो मच। सो चौथा पॉइंट ये हेल्थ एंड पॉपुलेशन। इसमें मैं अपने बात बताता हूँ, ये बुक अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो मेरा एडमिशन भी नहीं होते शायद। ये डॉक्टर जिब्राइल का एक बुक है जो अलीगढ़ में मिलता है, शमशाद मार्केट में 25 रुपए लेते हैं, जो स्पेशली सेंसस का ऊपर छोटा छोटा चीज का बहुत शानदार सा बुक है। तो मैं ये वाला बुक जरूर पढ़िएगा। और स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है, जो ओनली एमबीडी के लिए एंट्रेंस दे रहा है उसके लिए, ये अलग से आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो एमएमएससी और एमपीएस के लिए दे रहा है। ओके, बेसिक स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है, मेन, मीडियन, मोड। और 6 पार्ट जो है रीजनिंग, इसमें रीजनिंग का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो अगर सर का बुक है उसमें से आप पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये वाला पार्ट आई थिंक मुझे डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, ये मैंने वेबसाइट से लिया हूँ। कितना आपको फेलोशिप मिल सकता है, कौन सा कोर्स कितना ड्यूरेशन का है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, तो ये आपको वहां से मिल जाएगा। लास्ट डेट कब है, आगे चलिए। तो आईपीएस का एक ये तो मैं अब तक जो भी बात किया ये रेगुलर कोर्स सर प्लीज सर एक बार डिस्कस कर दीजिए। ओके ओके, यस सर, यस, ओके, थैंक यू। तो इसमें देखिए क्या है, 3 कोर्स मेजरली जो रेगुलर है, वो एक है मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसको एमए एमएससी कहा जाता है।
ठीक है। उसमें मस्ट एमए का जो है डिग्री, एमए एमएससी, उसमें आपके पास जस्ट बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आपका बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स में हो सकता, ज्योग्राफी में हो सकता, साइकोलॉजी में हो सकता, सोशियोलॉजी में हो सकता, एंथ्रोपोलॉजी में हो सकता है। ऐसे कई सारा लिस्ट है 15 सब्जेक्ट का। तो वो लिस्ट में से अगर आपको सब्जेक्ट पड़ता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट जो है आपका 25 साल होना है, 25 ईयर्स एज ऑफ जून 30 2022 आपका एज 25 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली रिटन एग्जाम होगा। और ये 2 साल का कोर्स है और आपको 5,000 आपको मिलेगा। 5,000 में से 440 रुपीज जो है आपको हॉस्टल के लिए ले लेते हैं वो लोग, बाकी 4,000 अराउंड 6,000 रुपीज जो है आपका अकाउंट में आ जाते हैं। और जो कि सफिशियंट है। और मैं बता दूं, इस आपको लग सकता है कि ये कम है, मुंबई जैसा बड़ा सिटी में इतना कम पैसा। देखिए, मुंबई में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है आपका रहने पर, जो कि हॉस्टल आपको 440 में मिल रहा है। बाकी खाने में आपको अराउंड 2,500 जाएगा। बाकी जो है आपका जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है, मैं ऐसा भी देखा हूँ, मेरा 1-2 क्लासमेट जो इस फेलोशिप से 1,000 अपना घर भेजते थे, मैं देखा हूँ। तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल ये अमाउंट जो है वो सही है। वेल, मेडिकल फैसिलिटीज अलग से है, तो आपको फिर उतना डरने का जरूरत नहीं है। ये फेलोशिप मंथली है? ये मंथली है फेलोशिप। ठीक है सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% जो मार्क्स है वो ऑल सब्जेक्ट में होना चाहिए? नहीं, ऑल द पार्टिसिपेंट आर रिक्वेस्टेड, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में रखेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेरी हो तो आप लोग नोट डाउन करके रखें, हम लास्ट में लेंगे सबका क्वेश्चन। या ओके ये बेहतर रहेगा। हाँ, और ऐसा भी मुझे बेइंतहाई पसंद है क्वेश्चन का जवाब देना, तो जरूर हम देंगे जवाब। ओके, तो दूसरा जो ये है कि मास्टर ऑफ साइंस इन बायोस्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी, तो ये एमबीडी कहा जाता है। एमबीडी में सोशल साइंस का जो स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एमबीडी में अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, हाँ, तो फिर आप अप्लाई करिएगा। हाँ, इसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका जो रिजर्वेशन रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये एक बात ध्यान में रखिएगा, आईपीएस बहुत स्ट्रिक्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन में। तो कभी-कभी हम सुनने को मिलता है कि फॉलो नहीं होता है, रिजर्वेशन जो जो भी है आईपीएस में बहुत अच्छे से फॉलो होता है। तो आप अगर आपका 50% भी है और आपका ये बैकग्राउंड एसटी एससी ऐसा कुछ है, तो फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे भी आपका जो एज है 25 साल का होना चाहिए। यहाँ पे भी आपका ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होगा। ये भी 2 साल का है। यहाँ पे भी 5,000 आपको फेलोशिप मिलेगा। ठीक है, और ये लास्ट डेट जो है ये मार्च 30 मार्च को है। लास्ट जो है मास्टर ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, इसका अगर आपको अप्लाई करना है तो फिर आपको आपके पास मास्टर्स होने का जरूरत है ऑलरेडी। ये मास्टर्स आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं, या तो साइंस बैकग्राउंड हो या तो आर्ट्स बैकग्राउंड हो, सोशल साइंस हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका जो एज होगा अपर लिमिट वो 28 ईयर्स होना चाहिए, मतलब उससे कम, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे आपको 5,000 ही मिलेगा, और ये 1 साल का कोर्स है। ठीक है, और इसका भी लास्ट डेट जो है सेम है। ये बेसिक डिस्क्रिप्शन है। अगर इसके बाहर आपको कुछ जानना है तो हम हमेशा आपका पास रहेंगे। या ऐसे नेक्स्ट पीपीटी, या डिस्टेंस लर्निंग फ्रॉम आईपीएस। तो आई वाज डिस्कसिंग लाइक हु शुड नॉट कम टू आईपीएस। तो आपको लगता है कि आपको ठीक है, आप अपना डोमेन में अच्छा कर रहे हैं, तो आप मगर एट द सेम टाइम यू हैव अ ड्रीम टू हैव अ डिग्री फ्रॉम आईपीएस। आपका एक सपना है कि आप आईपीएस से एक डिग्री लेंगे, तो आप आईपीएस जाने की नहीं भी जाएंगे तब भी एक डिग्री वहां से अचीव कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा। आईपीएस को नैक का जो एक्रीडिटेशन है उसमें ए मिला है, तो आपका जो भी डिस्टेंस मोड में आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, वो यूजीसी वैलिड है। तो आप
यू नो यहाँ से भी आप मास्टर्स कर सकते हैं साइड बाय साइड रेगुलर डिग्री के साथ, ठीक है। ये एक अलग ऑप्शन है। ये लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं questions and answer session. I would invite you, please do ask me whatever question you have, and I'll try my level best to answer all the queries and answer all the questions. Yeah. All the participants are requested. The live session is open for question and answer. किसी का अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। अगर किसी को हिंदी भी नहीं आते हैं तो बंगाली में पूछ सकते हैं। Yes, मुझे थोड़ा-थोड़ा करके बंगाली मेरा मदर टंग है, इंग्लिश आते हैं, हिंदी, उर्दू, तो आप किसी भी लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर। नसीम सर। यस यस सर मेरा क्वेश्चन, मैं बाला सुनली हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो मुझे पता चला है कि आप होप के माध्यम से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं IIPS एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि MA MSc के बाद एकेडमिया में कोई स्कोप है क्या? या मैंने इसको मतलब मेरा फर्स्ट पीपीटी में ही डिस्कस किया था कि स्कोप जो है कंपैरेटिवली लेस है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि है ही नहीं, कम है मगर है कुछ जो आपको भी पता है सीनियर्स है उनको मिला है। तो होप द आंसर क्वेश्चन। ओके। और सर और क्या पूछूं मैं आपसे? अच्छा है, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाला खान आपके क्वेश्चन के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन सर है? मैं शफाक रहमान लखनऊ से हूँ। यस सर ये IIPS का जो सिलेबस होता है एंट्रेंस का, मैम वो सर वो प्रोवाइड हो सकता है क्या हमें? यस हम जरूर देंगे आपको। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हमारे पास वो हम आपको दे सर इसका देंगे। मार्जिन, सर इसका मतलब नंबर्स में जो मार्क्स होते हैं सर वो नेगेटिव मार्किंग से या फिर ऐसे कुछ? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहते हैं, ठीक है। अब तक का जो मुझे पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहते हैं। मगर देखिए अभी क्या होता है, पहले इंटरव्यू हुआ करते थे, अभी इंटरव्यू नहीं होते हैं स्पेशली मास्टर्स के लिए। तो एग्जाम के पहले आपको बता दिया जाएगा कि नेगेटिव होगा या नहीं, मगर चांसेस बहुत कम है कि नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। सर विच मोड आप मतलब होता है, कौन सा मोड, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन होंगे। आपका जो सिटी है, बिग सिटीज में से कई सारा सेंटर रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, हाँ, उसके बाद कलकत्ता में, मुंबई में, बिग सिटीज में रहते हैं। तो आपको वहां जाके ऑनलाइन में आप एग्जाम दे सकते हैं। सर एनी रजिस्ट्रेशन फीस? रजिस्ट्रेशन फीस आप अप्लाई करने के दौरान ही आपको मास्टर्स के लिए, अगर जनरल है तो आपको आई थिंक 1000 पे करना होगा। अगर आप ओबीसी से है ओबीसी या तो 500 आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली। या ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हम बोल रहे थे कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कोर्स है, तो वहाँ पे भी प्लेसमेंट मिलेगा? वेल डिस्टेंस कोर्स का जो इफेक्टिवनेस है प्लेसमेंट का ऊपर, वो इतना स्ट्रांग नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और डिस्टेंस मोड का कोर्स ज्यादातर जो स्टूडेंट रहते हैं वो ऑलरेडी सक्सेसफुल, जो ऑलरेडी जॉब में है वही लोग करते हैं ज्यादातर। ओके, कोई सिविल सर्वेंट है या तो कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन में है, तो प्रमोशन के लिए ज्यादातर लोग करते हैं। हाँ, तो यकीनन अगर आप डिस्टेंस मोड में कर रहे हैं और आप जो भी उसका मोटिव है, उसका जो क्या कहते हैं स्किल्स है, वो अपने आप अपने आपके अंदर इनकलकेट कर रहे हैं, कोई एक सॉफ्टवेयर सीख लिया, तो उसके बेसिस में आपको जरूर जॉब मिल सकता है। मगर जो यू कैनॉट कम्पीट विथ रेगुलर स्टूडेंट्स, दैट इज क्वाइट क्लियर। सर डिस्टेंस में तो क्लेम कर सकते हैं? यस could you please repeat your question? सर मतलब जैसे हम डिस्टेंस कोर्स कर रहे हैं IIPS से, सर जो हमारी जो फेलोशिप्स होती हैं जो पर मंथ आती है, सर वो आएंगी या फिर? नहीं, डिस्टेंस कोर्स में आपको फेलोशिप नहीं दिया जाता है। डिस्टेंस कोर्स से आपको फेलोशिप नहीं दिया जाता है।
सर प्लेसमेंट क्या वहां से ही मिलेगा? नहीं, yes, IIPS has its placement sale, but to be honest, placement sale के द्वारा बहुत कम जॉब मिलता है। जॉब देखिए आईपीएस में एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, तो उसके लिए प्लेसमेंट के द्वारा जॉब मिलना ही है इसका कोई जरूरत नहीं है। आप खुद अप्लाई करेंगे आपको मिल जाते हैं। इवन बाहर बाहर में भी ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो आपके सीनियर्स रहेंगे, तो वहाँ पे आप खुद आपका सीवी भेजेंगे, तो फिर दे विल शॉर्टलिस्ट यू, दे विल इंटरव्यू एंड दे विल टेक यू। और हमेशा आईपीएस का स्टूडेंट होने के नाते हमेशा आपको एक अलग तरह का एडवांटेज मिलता है, इसलिए कि आईपीएस का होने के नाते उनको पता है कि ये स्टूडेंट के अंदर कुछ ऐसा खासियत है जो कि उनको चाहिए। स्पेशली रिसर्च के मामले में आप काफी कंपैरेटिवली बेहतर होंगे एज कम्पेयर टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस। तो ये है, तो ये कतई मत सोचिएगा कि वहाँ का प्लेसमेंट सेल से नहीं मिलेगा तो जॉब नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद के लिए काफी है एक कोर्स करने के बाद। सर प्लेसमेंट कहाँ मिलता है इस कोर्स करने के बाद? वेल प्लेसमेंट देखिए पीआरसीज है, अराउंड 17 पीआरसीज है, वहाँ पे प्लेसमेंट रहते हैं। आईपीएस अपने आप काफी सारा प्रोजेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो अराउंड मैं तो कहूँगा कि 50 स्टूडेंट्स जो है काम करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो भी डेवलपमेंट सेक्टर है, रिसर्च में इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि आईसीएमआर हो गया, बहुत सारा, उसमें अगर आपका बैकग्राउंड एमबीडी है उस हिसाब से मिल सकते हैं। उसके बाद सर्वे बेस्ड जो भी रिसर्च होते हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। और जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है ना, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, उसमें आपको आसानी से जॉब मिल जाते हैं। सर कलकत्ता के अंदर अपॉर्चुनिटी है कलकत्ता के अंदर? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं भी बंगाल से हूँ, मेरा दिमाग में कई बार आया कि काश मेरा जॉब कलकत्ता के आसपास में मिल जाता। तो कलकत्ता में अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, कंपैरेटिवली अपॉर्चुनिटी कम है, हालांकि है मगर पता नहीं आईपीएस का स्टूडेंट्स कलकत्ता का इस साइड बहुत कम है, मतलब जो जॉब करने के लिए आते हैं। हो सकता है सैलरी कम देते हैं, ये एक वजह हो सकते हैं, मगर ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुंबई बेस्ड या दिल्ली बेस्ड, दिल्ली एक हब है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं विथ हैंडसम सैलरी। ओके सर, थैंक यू। या सर ओके, हेलो। हम लोग क्वेश्चन वन बाय वन लेंगे। और एक क्वेश्चन किया था ऑलरेडी समीमा यास्मीन, आई थिंक यू गॉट योर आंसर। मोहिदा हैव ऑलरेडी रिप्लाइड यू। और एक क्वेश्चन है कि फॉर ए स्टूडेंट परसुइंग बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू, एमबीडी और एमएससी इन पॉपुलेशन स्टडीज? of course MBD, and after doing statistics, bachelor in statistics, that's the question. Yes, sir. Yeah, so you are not going to get MMSc degree, it's not up to you, they will give you MBD degree only. You will get MMSc, sorry, not MA degree, MSc degree. Yesterday only I was talking to one of the person who is working in the administration. I asked, it's not up to you. If you have science background, automatically you will get what to say, MSc degree, not MA degree. And why, I mean, do you want to have must MA degree when you have what to say, options to have MSc degree? So actually, my question was that if I want to, if I am pursuing bachelor's in statistics, so will population studies be better for me or biostatistics? Well, ये ना ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। मेरा एक कलीग था जिनका बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स था ग्रेजुएशन में, तो क्या हुआ, वो एमबीडी के लिए आया आईपीएस। तो कुछ मामले में एडवांटेज है उनका और कुछ मामले में डिसएडवांटेज है। तो आप मगर मैं यही कहूँगा कि क्विक जॉब
उसके बाद मुझे मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज माय बैकग्राउंड इज नॉट स्टैटिस्टिक्स एंड वन मोर थिंग बट जस्ट थिंक about one thing that from where you are going to do your biostatistics, I mean degree, other than IAPS. Sir, I May just know about IAPS. you are talking about IAPS only? Yes, sir. So of course MBD. See, IAPS provide only 3. If you have science background, like what to say, if you do not have masters, then you have only one option, that is MBD. So there is no point of getting kind of intra conflict. You have only one option. If you have only graduation in statistics, you have only one option in IPS, that is MBD. Are you getting? हेलो सर। Yes, sir. Thank you, sir. Yes. सर एमपीएस के बाद पीएचडी होगा और नहीं होगा सर? Yes. Now IPS does not offer this MPhil degree. Okay, so आपको MPS के बाद ही PhD है, कोई ऑप्शन है नहीं उसके बीच में। जस्ट 1 साल का एक डिग्री करने के बाद आपको PhD में मिल जाएगा। और मैं एक चीज पॉइंट करना भूल गया, अगर आपका GRF हो जाते हैं या तो आपके पास ऑलरेडी है, तो उस वक्त 95% चांसेस है कि आपका PhD में हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट जो है ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नसीर महमूद। Nasir Mahmood. Yes, sir. You can ask. Hello, sir. I'm a student at AMU. I'm doing my BSc in statistics, and I have keen interest in genomics and data science related to biostatistics. And so I just wanted to know if I can fill just one form there for MBD, or I can fill the both forms. What you said? I mean, what degree you are pursuing now? I'm pursuing BSc in statistics from AMU. Okay, so you have only one option. I don't know the same, the doubt you are getting, not only you but even the previous one. See, you have only one option. Are you getting? That is No, Nasim, sorry for interrupting. Those are pursuing master graduation in statistics, mathematics, or some other science subject. They are eligible for both course, like MMSc in population studies and MBD. They are eligible for both courses. Okay. So we need to apply separately for both the courses. If I want to appear in both entrance, you can apply. You can apply for both courses. Okay, but it is better to go for MBD, Masters in Biostatistics and Demography. Yeah, thank you. I discussed this thing with the one person who is there in the administration. Actually, the way he said, you won't get MA degree. That is for 100% sure. But okay. I mean, what to say? Next, Fahad Hussain. Ask your question, please. सर हम बोल रहे थे फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन फीस। We Nasim got network issues. He have some network issue. Actually, yes, network issue. Yes. Okay, Nasim, continue. Yeah, I did not hear what what was the सर हम बोल रहे थे कि कोर्स फी आप बता दीजिए ना। ये कोर्स फी एक्चुअली वेबसाइट में है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। तो मैंने जो देखा हूँ अराउंड 22,000 है मास्टर्स के लिए और एमबीडी के लिए, ऑलमोस्ट सेम है सब मिलाकर। ठीक है, सब मिला के मतलब एक साल का और दूसरा साल का मैंने जो देखा अराउंड 15 to 60,000 है, 15 to 16,000, 15 से 16,000 है सेकेंड ईयर में। यानी सेमेस्टर सिस्टम है ना, मगर आपको फीस जो देना है वो ईयर वाइज देना है। अच्छा। और हम बोल रहे थे कि वहाँ पे अब अगर हम पीएचडी करना चाहते हैं तो क्या यूजीसी नेट दे के जाना होगा या गेट्स वगैरह ऐसा कुछ? देखिए आईपीएस का जो फेलोशिप का मामला है, पीएचडी हमेशा उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है जिनके पास फेलोशिप है। वो आपका किसी भी तरह का फेलोशिप हो, मौलाना आजाद फेलोशिप हो या आपका दूसरा ऐसा कोई आपके पास फेलोशिप होना चाहिए
जो एग्जाम बेस्ड फेलोशिप हो या किसी भी तरह का फेलोशिप हो। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। और बोलो। हाँ बोलिए। और दूसरा बात ये है कि मैं जेआरएफ, जो देखिए जेआरएफ एक ऐसे एग्जाम है जो कि फेलोशिप मतलब इंटीग्रेटेड है। तो ज्यादातर यही होता है कि यू नो क्या कहते हैं, जो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं 95% से ज्यादा स्टूडेंट को मिल जाते हैं पीएचडी में। ओके, और बोल रहे थे कि हम मेरा बैकग्राउंड जियोग्राफी है, तो मास्टर्स भी कंप्लीट किए हैं और जीआरएफ भी है, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन लेना पाएंगे क्या? पीएचडी के लिए हाँ। नहीं होगा। मिनिमम यू नीड टू डू 1 डिग्री फ्रॉम आईपीएस बिफोर टेकिंग एडमिशन फॉर पीएचडी। एक तो करना ही पड़ेगा। या तो आप आप क्या कर रहे हैं अभी? मास्टर्स कर रहे हैं? मास्टर्स हो गया। अच्छा, मास्टर्स हो गया। तो फिर आप एमपीएस कर लीजिए 1 साल का, तो फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, पीएचडी में घुस जाइए। हाँ, ठीक ओके है। एमपीएस में आपको फेलोशिप मिल जाएगा पर मंथ 1 साल। ओके ओके ठीक है, डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको। ओके, थैंक यू। मजहर मुस्तफा। जी सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 50 टू 55 मार्क्स ऑल सब्जेक्ट, ये क्या सर सही में? ये एक मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। मगर मैं एमयू से था, तो ग्रेजुएशन में वहाँ पे क्या होता था कि हमारा एमयू में क्या कहते हैं, ओवरऑल एक मार्क्स आते थे इंक्लूडिंग सब्सिडरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो Yes, जैसे sir. कि मेरा अराउंड 65% मार्क्स था, तो वो ओनली ऑनर्स सब्जेक्ट नहीं था, वो तीनों सब्जेक्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं है, तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स मिलाकर 55% होना चाहिए ऐसा। ठीक है सर हेलो। ऑल सेमेस्टर या लास्ट ईयर? नहीं, फाइनल स्टेज में ओवरऑल एक डिग्री में आपको 55% मार्क्स, अच्छा, ना ओके ना सेमेस्टर वाइज ना सब्जेक्ट वाइज, ओवरऑल। सर। कट ऑफ क्या होती है इसकी? ये तो कट ऑफ देखिए ये बोलना मुश्किल है, मगर इतना मैं जरूर बताऊंगा कि क्या कहते हैं, वेटिंग लिस्ट जो है वो क्लियर होते हैं एक बार, मिनिमम 1-2 बार। ठीक है। थैंक यू सर। सर सीट कितना है सर, सीट? 50 सीट्स के लिए फेलोशिप होता है हर कोर्स में, मगर जो लिया जाता है मतलब अराउंड 35-40 ऐसे ही लिया जाता है। ठीक है। Next question from Abdul Ahad. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। यस यस। सर मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, बीए कर रहा हूँ, और मैंने स्टैटिस्टिक्स भी एज सब्जेक्ट, एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट मेरा रहा है। तो सर मेरा क्वेश्चन एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग है कि क्या मैं एमबीडी कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ या फिर सिर्फ पॉपुलेशन स्टडीज का ही कोर्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो पढ़े हैं मैंने, तो यही क्वेश्चन है सर। ओके, तो ऑलरेडी मोहाइमिनुल दा जवाब दे चुके हैं। आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमएमएससी एंड एमबीडी। ठीक है। हेलो। ओके, थैंक यू सर। यस यस। किसी का और कोई क्वेश्चन है? हेलो अगर किसी का कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं। हेलो ओके मुस्तफा, মশহুদ, ওকে কন্টিনিউ। স্যার মাসুদ বলছি, আমি মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি। যেহেতু আজকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, তো বাংলায় প্রিফার করলাম আমি। হচ্ছে সাপোজ কেউ এমএ কমপ্লিট করার পর যদি এমটিএস এ ভর্তি হয় আইআইটিএস এ, এবং তার যদি নেট থাকে এবং এমটিএস এর পর যদি সে আইআইপিএস এ পিএইচডি তে চান্স পায়, তাহলে তার ক্ষেত্রে ফেলোশিপটা কেমন হবে? एग्जैक्टली। आई देखिए, मैं आपको जवाब हिंदी में देता हूँ। मैं सवाल भी बोल देता हूँ क्योंकि आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबको जानने का जरूरत है। इनका सवाल ये था कि आईपीएस में सपोज जेआरएफ नहीं है, उसके बावजूद भी पीएचडी में किसी को चांस मिल गया, उसके बाद
पीएचडी में फेलोशिप कैसा होगा। देखिए आईपीएस का ये एक बेहतरीन पॉइंट है कि आपको जो फेलोशिप मिलेगा वो इक्वल टू जीआरएफ मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास नेट है तो, अगर आपके पास नेट नहीं है, आईपीएस कुछ ऐसा भी स्टूडेंट लेते हैं जिनके पास नेट भी नहीं है पीएचडी में, तो उन लोगों का फेलोशिप कम है, अराउंड 14 to 15,000 है इस वक्त। मगर आपके पास अगर नेट है तो फिर आपको यू विल गेट फेलोशिप इक्वल टू जेआरएफ। उम्मीद है आपको जवाब मिला है। आर्किक और सॉरी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस 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 মধুশ্রী, প্লিজ গো অ্যাহেড। বলছিলাম যে আপনি যে সিলেবাসটা দিলেন মানে প্রেজেন্ট করলেন, ওইটা আর কি মানে প্রত্যেকটা কোর্সের জন্য কি সেম সিলেবাস এন্ট্রান্সের জন্য নাকি আলাদা আলাদা? ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। और अगर आपको और भी अच्छे से थोड़ा पता करना है तो आपको क्या करना है, ये हमारा एक ग्रुप रहेगा होप का, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व हो जाइएगा। आपको उसका जो डिटेल्स एक एडमिशन प्रोसीड्यूर का प्रोस्पेक्टस हो गया या तो सिलेबस हो गया, एक पूरा पीडीएफ है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है, जो कि वेबसाइट में अवेलेबल है। आप खुद वहां से ले सकते हैं या हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सर। यस। आई थिंक और किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग क्या यहाँ सेशन मतलब एंड कर सकते हैं? किसी का और कोई क्वेश्चन है? सर और एक क्वेश्चन है सर। यस 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 सर अगर मेरा मतलब नेट जियोग्राफी से है तो हम क्या वहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या कोर्स करने के बाद? यस यस, अगर आपके पास नेट भी नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बोला कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी आईपीएस में लिया जाता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीट कहते हैं, तो जिन लोगों के पास नेट भी नहीं रहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तब भी आईपीएस में पीएचडी में होते हैं कुछ स्टूडेंट। हालांकि नंबर में कम है मगर होते हैं। मतलब एंट्रेंस देने के बाद या कोई एडमिशन टेस्ट देने के बाद? वो पीएचडी का एडमिशन टेस्ट होता है प्लस एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। यस, पीएचडी के लिए। यस। और किसी का कोई सवाल है? आई थिंक और किसी का कोई सवाल नहीं है, तो हम लोग ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर नसीम एंड आल्सो थैंक्स टू मिस्टर मोहाइदा एंड अबूबकर दा, जिन्होंने बहुत कोशिश करके ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। एंड फिर भी अगर किसी का कोई क्वेरी है रिगार्डिंग आईपीएस एडमिशन रिलेटेड, तो वो लोग जो होप ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंडिविजुअली कोई मतलब मुहाइदा को या मुझे या नसीम को जानते हैं तो हम लोग भी टेक्स्ट कर सकते हैं। हम लोग ऑब्वियसली हम लोग हेल्प करेंगे। Yeah, surely, surely. Thank you so much, Yasir, and thanks everyone for listening me. I don't know how much I could make you understand, but it was great talking to you, and wish you all the best. Thank you so much. Thank you everyone. Good night.